देखें जरा, कूलम्ब्स लॉ, force between the point charges in vacuum is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, can also be written as K Q1 Q2 by R square. That is, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड करके फिर न्यूमेरिकल्स पे चलूंगा. That is Coulomb's law. Value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. That is. Next, additional point है, Coulomb's law हमें क्या बता रहा है? Electric force between two point charges in it. Next is these forces. These are, we can say, electrostatic forces or electric forces are what? ये हमें देखना है. Electric forces obey Newton's third law of motion. कैसे देखें जरा? Let this is charge plus Q1, this is charge plus Q2 placed R meter apart in vacuum. What is the force between them? This one. This is the force exerted by Q1 on Q2 or Q2 on Q1? Both. Okay. This is 2 coulomb, this is 10 coulomb. तो कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगा है? 2 10 पे ज्यादा लगा है, 10 2 पे ज्यादा लगा है? 10 2 पे ज्यादा, 2 10 पे ज्यादा लगा है, 10 2 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा. कैसे? उसकी फोर्स ज्यादा है. हैं? Okay. Force exerted by one molecule on one charge on second particle is equals to K Q1 Q2 by R square. किधर होगा? 1 2 पे. Exerted by 1 on 2, तो रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा. ठीक है? किसका चार्ज आया इसमें? दोनों चार्ज आ गए. Similarly, force exerted by second charge on first charge is equals to K Q1 Q2 by R square. किधर होगा? Opposite F21. ठीक है? Now ये 2 coulomb है, ये 10 coulomb है, तो ये कितना आएगा? K into 2 into 10 by R square. और ये कितना आएगा? तो 2 10 पे ज्यादा लगाएगा, 2 10 2 पे ज्यादा लगाएगा. They will exert same. तभी तो बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्सेस obey न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट. माइनस साइन लगा सकते हैं आप क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है. फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल on another is equal and opposite to the force exerted by second on first. That is Newton's third law of motion. Next is these means electric forces obey inverse square law. Inverse square law का मतलब force is inversely proportional to r square. Square का distance, square of the distance पे डिपेंड करता है. ठीक है? नेक्स्ट, these obey superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे. कैसे? इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे. सुपरपोजिशन मतलब वेक्टर एडिशन. हाँ, क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया तो और भी करेंगे. These are electrostatic forces are medium dependent or independent? Medium dependent forces. ऐसा क्यों? That is, फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने. Force between the charges in medium is equals to F vacuum by K. K है dielectric constant of the medium. वो given मिलेगा हमें. Like it is infinite for metals, 80 or 81 for water. For vacuum or air it is 1. These are some points we should remember. और भी आएंगे पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे.
क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। किस पे बेस्ड? न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड हम करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे पूरा इस पे आगे अभी, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ना, 8 कर लेते हैं प्लीज। Electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charge is, equal charge means Q1 is equals to Q2, and force between them is given equals to 3.7 into 10 raised to the power minus 9 Newton is given. They are separated by a distance of 5 angstrom. R becomes 5 angstrom का मतलब 5 angstrom minus 10 meters. How many electrons are missing from each ion? दोनों चार्जेस से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे? एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, Q1 Q2। तो ये पार्टिकल है, न्यूट्रल होगा, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि दो इसमें से भी इसमें से भी, ताकि सो दैट इनके बीच में इतना फोर्स लग जाए। तो फोर्स हमें गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला वही Q1 Q2 by R स्क्वायर। F की वैल्यू 3.7 into 10 power minus 9, K की वैल्यू 9 Q स्क्वायर लिखो, दोनों इक्वल हैं, 25 अपॉन R स्क्वायर 25 into 10 power minus 20। इसको सॉल्व करेंगे by solving what we got, Q equals to, सॉल्व करेंगे इसको तो Q आ जाएगा, बट हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच पार्टिकल, ईच आयन इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ क्या लगा दे? क्वांटाइजेशन चार्ज। Q equals to N, तो N क्या हो जाएगा? Q by E। Q यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें याद रखना चाहिए 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ऐसे हमें क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन लेट अस डिस्कस। दिस इज 9th सीधा सा है, 10th बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, 11th 12th करते हैं डिस्कस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 11th की, 12th करते हैं। व्हाट इक्वल चार्जेस would have to be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational attraction? कौन-कौन किस-किस की बात कर रहे हैं? Earth, Moon and Earth and Moon दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगाएंगे? अट्रैक्टिव रिपल्सिव? ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है दोनों पे कितना इक्वल पॉजिटिव चार्ज रख दें, बट इक्वल चार्जेस would have to be placed on Earth and Moon। दोनों पे कितना इक्वल चार्ज रख दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी तो न्यूट्रलाइज करेगा, कैंसिल करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ, कि Q1 Q2 इक्वल है तो Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स 11 में बराबर है मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बाय विच G m1 m2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल, हमें Q निकालना है तो Q स्क्वायर आएगा G m1 m2 अपॉन K, और Q निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून बोथ आर गिवन, m1 m2 आर गिवन। g की वैल्यू हमें याद 6.67 into 10 power minus 11, k की वैल्यू थी 9 into 10 power। by solving we will got the charge in coulomb, that is, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सुपरपोजिशन का है। देखें जरा क्या है। 3 equal charges 2 into 10 power minus 6 each
तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू कितना है, 3 into 10 पावर -6 2 into 10 पावर माइनस 6 2 into 10 पावर माइनस 6 कूलम ईच। पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव कुछ नहीं कहा है तो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो मेंशन करेंगे। उन्होंने कहा 2 into 10 पावर माइनस, नेगेटिव होता तो माइनस लिखते। करेक्ट है सर, ऐसा कुछ नहीं Are held fixed at three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Side given है 5 centimeter. What is the Coulomb force experienced by one of the charges due to the two? किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। 3 चार्ज आर प्लेस्ड 1 2 3, कितना है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A। किसी एक पार्टिकल पे फोर्स निकालना है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका जैसे इस पे निकाल रहे हैं हम, या इस पे निकाल लेते हैं, इस पे ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको रिपेल, इधर फोर्स लगेगा अपन, और ये भी क्या करेगा, रिपेल, ये हो जाएगा F2, दैट इज, तो नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ द टू, दोनों का वेक्टर एडिशन। What is the value of F1? F1 यानी ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, F1 की वैल्यू K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या होगी, ये कितना लगाएगा, K Q स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो नेट फोर्स कैसे निकालें इस पे, दोनों का वेक्टर एडिशन। एंगल कितना होगा दोनों के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 60 डिग्री। ये लास्ट क्लास में भी बताया था, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 60 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या है, रूट 3 टाइम्स ऑफ एनी वन। 90 डिग्री पे हो तो रूट 2 टाइम्स ऑफ एनी वन, एंड 120 डिग्री पे हो तो इक्वल टू एनी वन। सो यहां आ गया डायरेक्टली रूट 3 टाइम्स ऑफ F1, रूट 3 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू AQ square by A square. By putting all the values we got the answer in Newton. Should remember distance सेंटीमीटर में given है, should convert in मीटर। सारी वैल्यूज सेम सिस्टम में होनी चाहिए, तभी आंसर सही आएगा।